सो एफ आई बी कॉम सेमेस्टर 2। देखो कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग सीख रहे हैं, नहीं? सब कुछ डॉक्यूमेंट्स पे ही बेस्ड है ये पूरा सब्जेक्ट। तो चैप्टर नंबर 7 इज व्हाट? चेक, पेन स्लिप, बिल ऑफ एक्सचेंज, एनईएफटी, आरटीजीएस, डिमांड ड्राफ्ट। क्या है ये? चेक कभी देखा है? हाँ देखा है। पेन स्लिप देखिए, क्यों होती है? पैसा डिपॉजिट करने बैंक में जाओ, कोई भी बैंक में घुसो, बिंदास घुसो, ओके। और जैसे एंट्री मारोगे, लेफ्ट में देखो या राइट में देखो, एक नोटिस बोर्ड दिखेगा। नोटिस बोर्ड के नीचे आपको ऐसे लंबे लंबे फॉर्म्स दिखेंगे, एक एक निकालो हर एक में से। यू विल सी पेइंग स्लिप फॉर सेविंग अकाउंट, फॉर करंट अकाउंट। यू विल सी रिकरिंग का एक अलग से। यू विल सी विड्रॉवल स्लिप, पैसा निकालने के लिए। ये जाओ करो, ऐसे ही एक एक लेकर आओ, घर पे लाओ, भरो। यू विल हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस थिंग। हमारे माँ बाप हमारे पास ये करवाते थे, और अभी सर कहाँ ये सब चीजें, बराबर है। तो डेफिनेशन ऑफ चेक, चेक क्या है? एक बंदे ने दूसरे बंदे को पेमेंट के लिए दिया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट, राइट? इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली। मीनिंग ऑफ द टर्म चेक, अब ये चेक आप अगर कंप्यूटर में टाइप करोगे वर्ड में तो रॉन्ग बताता है स्पेलिंग, ओके। आई डोंट नो द करेक्ट वन। Normally, check is the paper printed and issued by banker, normally issued in the form of booklet containing 10 leaves or 20 leaves, etc. called a checkbook. बड़ा लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है अगर चेकबुक खो जाए तो। Either used to withdraw money for personal use or to make trade payments or otherwise in favor of another person. In legal terms, check is a negotiable instrument. क्या मेरा चेक मैं आपके नाम पे ट्रांसफर कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, बराबर है। Instrument negotiable means transferable. A check given in the name of one person can be transferred to the ownership of another person by merely putting a signature on the backside of the check. The second owner can also transfer it to the third person by putting a signature below the signature of the first owner. This process is called negotiation and the instrument is called negotiable instrument. Okay. A check is a negotiable instrument which is supplied by the banker to the customer who opens a saving or current account in the bank. Definition of check according to the section 6 of the Negotiable Instrument Act 1881. What is a check? A check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. I dash 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 promise to pay या pay Mr. So and so a sum of rupees so and so. From the above definition, we come to know that what? A check is always drawn upon a banker. It is always payable on demand. बराबर है. Another definition of check. Check is an instrument in writing containing an unconditional order addressed to a banker signed by a person who has deposited money with the banker, requiring him to pay on demand a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of instrument. Okay. Essential elements या characteristics of check क्या है? It must be in writing, बराबर है. It should be drawn on a banker. It contains unconditional order to pay, बराबर. अगर मगर है क्या? नहीं, मैं पे कर रहा हूँ बस. The check must have an order to pay a certain sum, बराबर. कितना आशीर्वाद, कितना श्राप, कितनी शाबाश की ये होगा क्या? नहीं. Only monetary benefit होना चाहिए. It should be signed by the drawer and should be dated. It is payable on demand. It may be payable to the drawer himself. खुद के लिए भी आप चेक से पैसे निकाल सकते हो. The banker is liable only to the drawer. It does not require acceptance and stamp. उसके ऊपर कोई थप्पा मारने की जरूरत अपने को नहीं है. टाइप्स ऑफ चेक देखो, आप लोग ये सीखे हुए 11वीं में भी. बेरर चेक, आओ जाओ अपना घर, किसी की भी नाम पे हो सकता है. ऑर्डर चेक, स्पेसिफिक बंदे को इतना पैसा देना है. क्रॉस चेक, ऊपर 2 लाइन मार दी, यानी कि ये अकाउंट में ही जाएगा, सामने वाले बंदे को ही देना है. अकाउंट पे ही चेक, 2 लाइन मार दी, अकाउंट पे ही ऐसा लिख दिया, तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा. ओके, कंपल्सरी. समझ में आ रहा है? कंपनी क्रॉस चेक, नाम से पता चल रहा है कौन कर रहा है, ये कंपनी करे. अब हमारे स्टाफ के सैलरी जाती है तो क्या हर एक के नाम से थोड़ी जाएगा? नहीं, एक लमसम अमाउंट चला जाता है, इसमें से इतना 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 इसका 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 सैलरी जाने देना. ओके. स्टेल चेक, सड़ा हुआ चेक, जो डेट खत्म हो गई है वो. नॉर्मली 3 महीने तक चेक चलता है. 3 महीने के बाद अगर वो चले तो स्टेल यानी कि बासी. ओके.
बिल ऑफ एक्सचेंज, आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पूरा 18 मार्क का इसके ऊपर टॉपिक किया हुआ है, 12 मार्क का सम और 6 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स, राइट। हाँ, तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इट मस्ट बी इन राइटिंग, यस। हाँ, जो साइंस से है वो लोग अपने चैनल पे जाकर SYGC पे जाकर बिल ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, यस। ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे, ये तीनों के नाम होना जरूरी है। एक्सेप्टर, ड्रॉवी उसको एक्सेप्ट करता है तो वो जरूरी है, बराबर है। देन एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे साइन बाय द ड्रॉवर, अ सर्टेन सम ऑफ मनी मेंशन होनी चाहिए। ऑर्डर टू पे मी मनी और मनी ओनली, सिर्फ पैसा ही है, मी और माई ऑर्डर, बट वॉट, अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो। कांदा, बटाटा, आम चलेगा यार? नहीं, पैसा ही चाहिए, बराबर। स्टैंपिंग, ऊपर स्टैंप होना जरूरी है, वरना बिना स्टैंप का जो बिल है वो सिर्फ एक ड्राफ्ट है, बाकी कुछ नहीं। यस, आई होप इट्स क्लियर, समझ में आ रहा है।